अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एंजाइम से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट थ्रू अ स्पेसिफिक फीचर्स और साइट प्रेजेंट इन एंजाइम नोन एज बिल्डिंग साइट, कैटालिटिक साइट, एक्टिव साइट, इनहिबिशन साइट। तो इसका करेक्ट आंसर है कैटालिटिक साइट। इसको अभी हम हाईलाइट कर लेते हैं। एक्टिव साइट इसका करेक्ट आंसर है। Any molecule that increase the rate of chemical reaction without being used up during that reaction is called the coenzyme, activator, apoenzyme, catalyst. The reactants on which enzyme works are products, substrate, metabolites, catabolites. Substrate. Which one of the following comprises inorganic ions? Coenzyme, prosthetic group, activator, apoenzyme. Activators जो हैं ये inorganic ions होते हैं. Which of the following type of inhibitor can be neutralized by adding more substrate into the reaction? Irreversible inhibitor, irreversible non-competitive, रिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल इनहिबिटर इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है अगर हम सबस्ट्रेट के अमाउंट को ज़्यादा कर दें। What is true about enzyme? Fibrous protein used in reaction, no effect on end product, non-specific. तो इसमें फाइब्रस प्रोटीन जो एंजाइम्स हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं और रिएक्शन में यूज़ भी नहीं होते और इनका इफ़ेक्ट जो होता है एंड प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होता और ये स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। तो ट्रू इसमें से सिर्फ एक ही है, दैट इज़ इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट। Modified form of lock and key model was proposed by Koshland, Fisher, Watson, Rosalind Franklin. अब यहाँ पर इसने ये पूछा कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल, यहाँ ये नहीं पूछा कि लॉक एंड की मॉडल किसने प्रपोज किया था, इसको मॉडिफाई किया था कोशलैंड ने और इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो प्रपोज किया था। Enzymes increase the rate of reaction by increasing temperature, decrease activation energy, decreasing pH, increase activation energy. Enzymes जो हैं वो activation energy को decrease करते हैं. The type of inhibition in which inhibitor has no structural similarity to substrate and combines with enzyme at other than the active site is called. अब यहाँ पे structural similarity नहीं है, इसका मतलब है कि ये competitive नहीं है, ये non-competitive है और ये अदर देन द एक्टिव साइट है। तो इसमें से हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन सी करेक्ट है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर ये भी नहीं हो सकता, नॉन कंपेटिटिव एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर ये सही लग रहा है। तो नॉन कंपेटिटिव है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं है और अदर देन द एक्टिव साइट ये अटैच होता है। The inhibitors that bind tightly and permanently to the enzyme and destroy their globular structure and catalytic activity are। अब ये उस इनहिबिटर की बात हो रही है कि जो टाइटली बॉन्ड होता है और कैटालिटिक एक्टिविटी को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, वो है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट सक्सीनेट इनटू मैलेट, सिट्रेट, फ्यूमेरेट, ऑक्जेलेट। तो इसकी जो प्रोडक्ट बनती है वो होती है फ्यूमेरेट। इफ द डिटैचेबल कोफैक्टर इज एन इनऑर्गेनिक आयन देन इट इज डेजिग्नेटेड एज एक्टिवेटर। The view that active site of an enzyme is flexible and when substrate combines with it causes the change in enzyme structure is known as induced fit model. If the cofactor is covalently or tightly and permanently bonded to enzyme, then it will be called coenzyme, activator, apoenzyme, prosthetic group. Prosthetic group जो ये covalently या tightly bonded होता है. All enzymes are derived from All coenzymes are derived from proteins, metal ions, vitamins, carbohydrates, vitamins. The competitive inhibitors have structural similarity with the active site, substrate, binding site, coenzyme. Competitive inhibitors substrate के साथ structural similarities रखते हैं. A cofactor tightly bonded to the enzyme on the permanent basis. अब ये permanent basis में एक्टिवेटर, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये टाइटली बॉन्डेड होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज की जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो 9। विच मोलेकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम इज इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम।
quaternary structure, secondary, tertiary, primary, tertiary structure. Some enzymes require helper, which is non-protein part for its efficient functioning. Then that is called cofactors. Pepsin protein digesting enzyme act best at pH 3, 4.5 to 6. तो इसकी एसिडिक pH यानी 2 के ऊपर इसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी होती है. Which one of the following is an example of competitive inhibitor? सक्सीनिक एसिड, ये तो सबस्ट्रेट है. ग्लूकोज, फ्यूमारेट जो है ये जब सक्सीनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ मिलता है तो जो प्रोडक्ट बनती है वो फ्यूमारेट होती है. तो इसमें उन्होंने ये पूछा है कि कंपेटिटिव इनहिबिटर कौन सा है. तो मेलोनेट जो है ये कंपेटिटिव इनहिबिटर है, ये सक्सीनिक एसिड का कंपेटिटिव इनहिबिटर है. एंजाइम रिक्वायर्ड मैग्नीशियम आयन टू कैटालाइज द सबस्ट्रेट. द मैग्नीशियम इज बेस्ट आइडेंटिफाइड एज. तो मैग्नीशियम ये एक इनऑर्गेनिक आयन है, तो ये एक्टिवेटर है. दिस फिगर रिप्रेजेंट डैश इनहिबिटर. इस फिगर की बात हो रही है, इसमें कौन सा इनहिबिटर जो है वो दिखाया गया है. यहाँ पर आप देखें ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर है. इनहिबिटर और सबस्ट्रेट जो है ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है. तो इनहिबिटर जो है ये एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड हो गया, लेकिन इसमें प्रोडक्ट नहीं बन रही. तो इसका मतलब है कि ये फिगर किस चीज़ को शो कर रहा है, कौन से इनहिबिटर को, ये कंपेटिटिव इनहिबिटर को शो कर रहा है. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पेप्सिन. ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये एंजाइम कंसंट्रेशन को शो करता है. ये वाला जो है जो कर्व्ड होता है ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, और ये वाला ग्राफ है इसमें ऑप्टिमम पीएच जो है 2 दिखाई गई है. ये शो कर रहा है कि पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच 2 है और उसके रिएक्शन को ये शो कर रहा है. ऑल एंजाइम्स आर फाइब्रस प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, लो मोलेकुलर वेट प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. द रिएक्टेंट्स ऑन विच एंजाइम वर्क उसको कहते हैं सबस्ट्रेट. Which one of the following comprises inorganic ions? Activators are the inorganic ions. Extreme change in pH causes the bonds in the enzyme to break, resulting in the enzyme denaturation. Salivary amylase की यहाँ पर optimum pH जो है ये 6.8. Malonic acid is competitive inhibitor of succinic acid. It causes denaturation of globular structure of enzyme. Slight change in pH, extreme change in pH. ये इसकी correct option है. ये 33 वाला है. Which one of the following is reused? Substrate, enzyme, coenzyme, enzyme and coenzyme. Enzyme और coenzyme दोनों ही ये reuse हो सकते हैं. Some enzymes are potentially damaging if they are manufactured in their active form. फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कौन से एंजाइम जो हैं अगर वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ हो जाए तो वो डैमेजिंग होता है. तो पेप्सिन, और पेप्सिन की जो इनएक्टिव फॉर्म है वो है पेप्सिनोजन. ए जो है ये सबस्ट्रेट है, ये कन्वर्ट होता है बी सी में, सी डी में और डी ई में. ये एंजाइम टू एंजाइम चेन एसोसिएशन दिखाई गई है. अब यहाँ ये पूछा गया एक्यूमुलेशन ऑफ ई, यानी कि एंड प्रोडक्ट अगर एक्यूमुलेट हो जाती है, इट विल कंट्रोल द अबव पाथवे थ्रू. कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जो है ये पाथवे को कंट्रोल करती है, ये है फीडबैक इनहिबिशन. सक्सीनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज ये अगर मेलोनिक एसिड के साथ कंबाइन करें, मेलोनिक एसिड जो है ये कंपेटिटिव इनहिबिटर है सक्सीनिक एसिड का, तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ है. नो रिएक्शन पॉसिबल. फ्यूमेरिक एसिड बनेगा नहीं, ये नहीं बन सकता क्योंकि ये प्रोडक्ट है जब सक्सीनिक एसिड आकर अटैच होता है. एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा. नो रिएक्शन पॉसिबल, एंजाइम इज ब्लॉक्ड. ये वाली सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है. राइबोजाइम ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं होता और ये सिर्फ आरएनए होता है. सी ऑप्शन. The reaction rate of salivary amylase with the starch decreases as the concentration of the chloride is reduced. Which of the following describe the role of chlorine ions? तो ये chloride ions जो हैं वो यहाँ पर किसके तौर पर एक्ट कर रहे हैं, कोफैक्टर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट है नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स रिएक्ट विद एंजाइम एट. नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स जिसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी सबस्ट्रेट के साथ नहीं होती तो वो एक्टिव साइट पर जाकर अटैच नहीं होगा. तो ये अदर देन द एक्टिव साइट पर जाकर अटैच होता है, जैसे कि यहाँ पर सामने दिखाया गया
इसके साथ ये वाली साइट है जहाँ पर ये कंपेटिटिव नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर आकर अटैच हुआ है। जब ये आकर अटैच होता है तो एक्टिव साइट की शेप भी चेंज हो जाती है। तो अगर जेन्युइन सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट है तो यहाँ पर आकर जेन्युइन सबस्ट्रेट भी अटैच नहीं हो सकता। तो ये किस साइट पर अटैच होता है? एलोस्टेरिक साइट के ऊपर। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू देयर सरफेस कॉन्फ़िगरेशन, pH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाई मोलेकुलर वेट। तो इसकी सरफेस कॉन्फ़िगरेशन यानी जो शेप बनती है, एक्टिव साइट की जो शेप बनती है उसके ऊपर स्पेसिफिसिटी डिपेंड करती है। What is the common in both competitive and non-competitive inhibitors? Competitive और non-competitive inhibitors इन दोनों में क्या कॉमन है? ये दोनों ही रिवर्सिबल इनहिबिशन इसकी इनहिबिटर्स की टाइप्स हैं। तो 41 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। अ स्टूडेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग मिस्टेकनली engulfed the toxic compound A, which was the protein inhibitor of a certain enzyme. He was immediately brought to the hospital where doctor injected intravenous substrate B to minimize the toxic effect of the compound A. His life was saved from the serious damage. The treatment method shows that the compound A was a dash inhibitor. अब सबस्ट्रेट ए दिया था, यानी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया गया। तो अब ये पूछ रहा है कि ये कौन सा इनहिबिटर है? इरिवर्सिबल अगर ये होता तो ये ऊपर वाला जो पूरा प्रोसेस बताया ये नहीं हो सकता था, यानी रिवर्स नहीं हो सकता था। तो इसमें ये वाला जो इनहिबिटर है ये है रिवर्सिबल इनहिबिटर, इसलिए उसकी लाइफ जो है वो सेव हो गई थी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ कोएंजाइम एक्टिविटी? NAD जो है ये कोएंजाइम एक्टिविटी रखता है। कम्बिनेशन ऑफ एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम प्रोड्यूसेस होलोएंजाइम। इरिप्सिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीएसेस। Dash enzyme catalyze the breakdown of specific covalent bond and removal of group without hydrolysis. विदाउट हाइड्रोलिसिस जो है कोई ग्रुप रिमूव होता है तो वो वाले एंजाइम्स इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइएजेस। A प्लस बी प्लस ATP ये कंबाइन कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर एंड प्रोडक्ट बन रहा है और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये रिलीज हो रहा है। विच टाइप ऑफ एंजाइम कैटालाइज दिस रिएक्शन? अब इस रिएक्शन में ATP यूज हो रहा है, A और B जो है ये एक दूसरे के साथ जो है ये अटैच हो रहे हैं। यहाँ पर प्लस का सिंबल है, यहाँ पर A और B जो है ये एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं। तो लाइगेजेस एंजाइम्स जो हैं ये दो मॉलिक्यूल्स को आपस में अटैच करते हैं और इस ATP की एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। फीडबैक इनहिबिशन इज अ टाइप ऑफ डैश इनहिबिशन, रिवर्सिबल नॉन कंपेटिटिव inhibition. If all the active sites are occupied by substrate, situation is called the saturation. If more substrate to already occurring enzymatic reaction is added, more enzyme activity is seen because इसका मतलब है कि एंजाइम ज़्यादा पहले से ही ज़्यादा प्रेजेंट था, बस उसमें सबस्ट्रेट कम था। तो जब सबस्ट्रेट को ऐड किया तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई। अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन है। देयर इज़ प्रोबेबली मोर सबस्ट्रेट, तो ये तो यहीं पर ही गलत हो गया क्योंकि सबस्ट्रेट हमने ऐड किया है। देयर इज़ प्रोबेबली मोर एंजाइम प्रेजेंट दैन देयर इज़ सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट कम था पहले तो एंजाइम ज़्यादा था, जब सबस्ट्रेट को ऐड किया तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई।